of applause for this felicitation ceremony. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such lovely words. Yes, so, okay. Before talking about him, so everyone knows that it's been just 5 years I've been married in this family. So the connection which I have, which I share with so I call him Bade Papa. So the connection with which I share with him is so special. Maybe I have got this from my parents, but I think this is there in the roots of this family as well. So I am really blessed to have such kind of family and to have him as you can say as our grandfather, because the values he has given him, I think, and the kind of person he is, such a lively person. I think wherever he goes, gets a life, you can say there's such a life in that place. So I think, yeah, so all about him. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. My respected seniors, I would say. Langston Hughes said, "Hold fast to dreams, for if dreams die, life is like a broken-winged bird that cannot fly." I was going through the preface of your book, sir, and the opening line in Hindi, in English and Punjabi is, "Mera supna si," right? अंताक्षरी खेलते सन या जो भी करते सन. प्रोफेसर गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी ने अपनी किताब से की मेरी अपुल यादा उस लिखिया सीगा किसी दे बारे सोचना एक अपने आप च बहुत ही वड्डी चीज़ है. इन्होंने दे प्रीफेस लिखिया सीगा, मैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश फॉर 3 लैंग्वेजेस उर्दू ਨੂੰ यूज़ किया ताकि किसी ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ना होए. The thought process, it is so beautiful to understand that जे मेरी कोई किताब पढ़ रहा है, he has used all the languages. We all are living in GAFA world. GAFA world is Google, Amazon, Facebook and Apple. And sir, with his age, he is on YouTube, he is on Twitter, and he is writing, he is into so much of internet world. So he is a true leader, a legend. कोई भी कोशिश नाकाम हो सकती नहीं, कोई भी कोशिश नाकाम हो सकती नहीं. Sir, this is dedicated to you. मंजिलें ना भी सही, फासले तो घट जाएंगे. And the efforts of his thoughts, of his poems, of his thought process of all these 8 decades, I think we must appreciate and applaud his thought process over the years, giving to society in every way he wanted to. Maybe it was India or Canada. And I must say, India today lacks, a generation has lost. But day before yesterday, I felt India still exists. India is existing because of its heritage and culture. वो किमें है? Her granddaughter-in-law Pratima. सर इस बुक लॉन्चिंग ते सर आए हो सर एज ए गेस्ट, सर की कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहूँगा कि साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है उन्हां च अखबार और साहित्य पढ़न की जिहड़ी टेंडेंसी घट रही है, ये समाज की सेहत लई कोई चंगी गल नहीं है. चंगियां कवितावां, चंगे लेख, चंगे ड्रामे समाज नूं नवीं सेध दिंदे है, तुहाडे दिमाग नूं विकसित करदे है और समाजिक बुराइयां नूं, समाजिक प्रॉब्लम्स नूं समझण दी अंडरस्टैंडिंग दिंदे है. इस करके नौजवान पीढ़ी नूं भी जिहड़ा साहित्य दे नाल जुड़े रहना जरूरी है और चंगे समाज की सिरजना लई चंगा होवेगा कि साडी नौजवान पीढ़ी वो कवितावां, वो लेख पढ़न जिहड़े अज दे समाजिक बुराइयां, समाजिक कमजोरियां नूं उजागर करते हैं और सानू सेध दिंदा है कि इन्हां चीज़ां तो असीं किवें उभर सकते हैं और असीं अपने समाज नूं किवें सेहतमंद बना सकते हैं.
ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੇ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। और फिर ये कोशिश की थी कि जितना ज़्यादा लोग सुनन, अगर कुछ भी आदमी इसनों अगर अपने रस्ते नूं सीधा कर लैन, तो मेरी ये जी कोशिश है जिस किताब ने बनाने मेरे करीब टोटल अगर सोचा जाए बचपन के करीब 25-30 साल लग गए मेरे। चाहे किताब दिस रही है छोटी जी कि 70-80 पेज की, पर इनू बनाने में मैनू करीब कहना चाहिए 50-60 साल लग चुके हैं। बचपन से मेरे दिल में ख्याल सी, और मैनू अज बड़ी खुशी है कि मैं इस सपने नू पूरा कर सकिया। एक प्रॉब्लम सी कि मैनू अंग्रेज़ी, हिंदी, पंजाबी और चारों उर्दू चारों लैंग्वेज पूरी महारत सी। तो जिसले किताब मैं लिखन लगा मैं सोचा कि इसको किस तरह लिखा, क्योंकि एक आदमी सारिया ज़बानां नहीं जान सकता। तो फिर मैं सोचा कि पहला पंजाबी और इंग्लिश एंथोलॉजी लिखा, उसके बाद दूजी जी मैं अटैम्प्ट कराँगा वो इंग्लिश और हिंदी की अटैम्प्ट कराँगा, ताकि ज़्यादातर लोगों को ले जा सके। और अगर कुछ अपने रस्ते में वो सुधार ते पा सकते हैं तो मैनू बड़ी खुशी होएगी। और जरा मेरा एक उद्देश्य है जिंदगी का, वो शायद कुछ हद तक मैं अगे उसको पूरा कर सका। मैं उस वास्ते रब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें मैनू शक्ति दी है, कुछ बुद्धि दी है कि मैं इसनू पूरा कर सकिया। सर तुसीं इस किताब दे विच दो जिहड़ी कवितावां लिखियां ओहदी दो लाइनां सानूं साडे दर्शकां नूं चैनल बुक जरा मंगवा लियो, बुक मंगवा लियो। मैं जिहड़ियां कवितां लिखियां ने, एक बुक कोई भी लैवे उत्थों, बुक में अलग अलग सबजैक्ट ते लिखियां ने। तो फॉर एग्जाम्पल एक कविता है संत सिपाही। इस विच मैं सिखिज़म दे जड़ा एक फिलासफी सी उसनूं एक आम शब्दों में लियाउण दी कुछ कोशिश की सी। जिस तरह मैं वीडियो बनाया उससे राग विच मैं तुहानूं कोशिश करना बगैर इंस्ट्रूमेंट दे। खालसा पंथ दा बाग बनाया, खालसा पंथ दा बाग बनाया, धर्म दी धरती च बूटा लाया, सुत्तियां रूहां च अमृत पाके, सुत्तियां रूहां च अमृत पाके, संत सिपाही अनोखा सजाया, खालसा पंथ दा बाग बनाया, धर्म दी धरती च बूटा लाया, खालसा पंथ दा। फिर एक कविता होर लिखी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी थे। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ते लिखना तो मतलब एक बहुत ही मेरी इस नाचीज़ की मतलब सोच सी, पर फिर मैं कोशिश की है। श्री गुरु ग्रंथ नूं शीश निवाए, दसां जोतां दे दर्शन पाइए, गुरु ग्रंथ नूं शीश निवाए, दसां जोतां दे दर्शन पाइए। फिर कुछ कवितावां जड़ियाँ मैं इस विच पाइयां ने, करीब 10 कवितावां कि जो कोई अपने राग भी उसको गाना चाहे वो गा सकता है। वो मैं सिर्फ लिख के और कविता सिर्फ पढ़ियां ने, उसी गावे नहीं कोशिश नहीं की है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर पहली कविता मेरे दाता, वो मैं लिखा है मेरे दाता मैं की जाना, तेरियां दातां दा इतना खजाना, जो कुछ मंगा मैं पा जाना, पहला 100 धक्के खाना, इस मूर्ख नूं सदा बख्शाना, इस मूर्ख नूं सदा बख्शाना, तेरियां दातां दा
फिर वक्त के बारे च एक पोएम में लिखी है इन्होंने कविताओं में, सोचता हाँ मैं सोचा है समा की कुछ समझ ना आवे, मैं सोचा है समा की कुछ समझ ना आवे, समा खलोता प्या मुस्कावे, समा खलोता प्या मुस्कावे। तो इस तरह कविता ने हर सब्जैक्ट से मैं कोशिश की है। फिर अंग्रेजी में भी कोई लिखा सी नशे के बारे में, जोड़ा नशा आम लोगों में हो रहा है, खास करके बच्चों की, उसनों थोड़ा मोटिवेशन करने वास्ते मैं लिखा सी, I thought intoxication will give me delight, I thought intoxication will give me delight, shall relieve me from stress plight, shy and courteous took magic cigarettes for company's sake, my well-wishers look aghast। तो इसी ताकि जड़ा आम सिगरेटा पींदे ने और समझते हैं इस तरह साड़ी टेंशन घट होएगी, सानू थोड़ा रिलीफ मिलेगा, वो एक गलत चीज़ थी। और इस नाल तुहानू किस तरह कैंसर वगैरह तुसीं इनवाइट कर रहे हो, वो मैं कोशिश की इस कविता में। तो इस तरह होर भी सब्जैक्ट जोड़े मैनू नज़र आए, मैं कोशिश की कि अपने एक अंदाज नाल और एक निमाणे व्यक्ति के तौर पर जो हो सकता है वो मैं कोशिश की है।